हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, बस 2 मिनट मुझे टाइम देना, 2 मिनट में बस शुरू कर रहा हूँ बस। ओके सर, ओके ठीक है। रोटी करेंगे तो 11 रुपए पेमेंट हो जाएगा। तो उस 1 रुपए में आप 75% आप अपनी तरफ में डाल दीजिएगा, 25% हमारे पास में भेज दीजिएगा। तो वो एंटी करप्शन, वो सारा पैसा जो है एंटी करप्शन कॉस्ट हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी, इससे एक आपकी साख और बढ़ेगी कि आप भ्रष्टाचार विरोधी। सॉरी, किसी कर रहा था, बीच में लेट हो गया। सॉरी। सो आज का हम लोग बहुत कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है हम लोग के, जो भी डिस्कशन होता है, और विल ट्राई टू स्टिक अवर शेड्यूल। ठीक है। सो टुडे आई एम प्लानिंग टू शेयर विथ यू some thoughts, food for thought for section 164. So section 164 uh, of CRPC is also very important. Because क्या होता है कि अभी बहुत बार आपने सुना होगा, जिनको who are well versed with the provisions of the CRPC, okay, there is a recording of a statement, and the whole criminal jurisprudence is basically based on two premises. Okay, one is that, if I have to divide it part wise part, so we can divide the whole criminal jurisprudence or the in three different parts. Okay, if I can say that, one is the investigation. Investigation, as we have discussed, also the investigation means uh, collection of the evidences. Okay, where investigating officers, who is basically a police officer and who can be not a police officer as well, because police investigating officer का मतलब ये नहीं होता कि police officer ही होगा। तो वहाँ पे वो evidences को इकट्ठा करता है, चीजें होती हैं उस पर, और फिर वो उस evidence को it get presented to the court, and then court में उस evidence को हम लोग basically देखते हैं कि किसके फेवर में, किसके अगेंस्ट में। आई एम जस्ट यूजिंग द लेमन टर्म्स बिकॉज this also there is a process, because whether this evidence is relevant, if it's relevant, then how it's going to be admissible. Those things are there, but many of you may not be aware of those things. Okay, so I'm just trying to explain you the process. So during the investigation, recording of a statement is very important. क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो आपका एक, अगर मान लो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एक एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में दर्ज होती है। वहां आपको पहला स्टेटमेंट मिलता है। पहला स्टेटमेंट क्या होता है? जो कहलाता है तहरीर। ओके, द कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूट्रिक्स, जिसको हम लोग यूज करते हैं वर्ड। सो द कंप्लेनेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज तहरीर। तो पहला स्टेटमेंट किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो आता है, वो एफआईआर में दौरान रिकॉर्ड किया हुआ इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद में हमने देखा है कि पुलिस ऑफिसर्स कैन record a statement. I mean, not can, but police officer have to record the statement of the everyone who is involved with the case. Everyone includes the complainant,
accused are there, accused हो जाएगा, witnesses, and also those officials who are involved into the criminal investigations. For example, dog squad आता है, ठीक है, या कोई एक just a minute, I'm getting a call, so मैं एक मिनट. Sorry. So, it's recording of a statement takes place during the investigation. But वो जो investigation के दौरान जो statement record होता है, वो section 161 में होता है. 161 में बोला जाता है कि भाई आप अपना statement देंगे. We have discussed also 161 का provision जहाँ पर IU investigating officer statement record करता है. अगर कोई witness नहीं आता है तो he can issue some sort of a summon, okay, in under section 160 to come and get his or her statement recorded. अगर मान लीजिए कि वो जो बंदा है वो मेल है और उसकी एज 15 ईयर से कम है और 60 ईयर से ज्यादा है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज टू गो to his place and get the statement recorded. If the person is female also, in that case also the investigating officer has to go to her place and get her statement recorded. So उनको थाने पे नहीं बुलाना है. So these are provisions. So I request all of you to go through section 1 and 160. They are very important. And then we'll talk about 162 जहाँ पे कि statement sign नहीं होता है. उसका रीजन और है कि इट्स गेट्स हिट बाय अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. उसको कैसे प्रूव किया जाता है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 164 बिकॉज 164 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस दैट देयर आर few provisions in the CRPC which makes our work in a sense easier for investigating officer, because you have read that any statement before police has no evidentiary value. अगर मान लो कि मैं पुलिस के सामने जाके पुलिस के सामने और पुलिस थाने के अंदर में या पुलिस कस्टडी के अंदर में अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने ये क्राइम किया है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, एविडेंसरी वैल्यू. ठीक है, उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता. ओनली पार्ट ऑफ दोज स्टेटमेंट्स which leads to the recovery can be used against the accused. For example, मैं कहता हूँ कि मैंने कत्ल किया और मैंने ये हथियार वहां छुपा रखे हैं, मैं हथियार बरामद करा सकता हूँ. So those statements, मैंने कत्ल किया, ये स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने हथियार इससे किया और हथियार को मैं बरामद करा सकता हूँ, इसकी एविडेंसरी वैल्यू है. नाउ कमिंग टू 164, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ 164 में है एक स्टेटमेंट जो होता है एक्यूज का रिकॉर्ड किया जाता है. अच्छा, जब मैं बोलता हूँ तो बहुत बेसिक में क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड से क्या मतलब है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? तो बताओ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट? साहिल तुम बताओ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट? कुछ भी बोलो, सही गलत कुछ भी है. सर एक्चुअली साहिल का थोड़ा सा वो नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम है, तो इस वजह से सर उसको मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं हाँ, किसी एक बार पे भी चेक कर यूज लेता करना हूँ. है, किसी पे भी यस सर. चाहे तो बोल सकता है. सी, देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट मतलब ये हुआ कि एक अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी, इट मे बी द पुलिस ऑफिसर, इट मे बी द कोर्ट, which record the testimony of any individual, okay, about happening or not happening of the event, particular event. तो क्या होती है, अगर पुलिस के सामने आप जाके कुछ बोलते हैं, कोर्ट के सामने कुछ जाके बोलते हैं, तो आप देखोगे ना पूरे केस में सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते रहते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुआ, डिफेंस एविडेंस हुआ. So the whole process is of recording the evidences. So 160 also deals with the recording of a statement. Okay. यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है. और अगर खोलोगे तो उसमें क्वेश्चन चीज ये है कि यहाँ पे ये बात मैं देखता हूँ 164 में, तो 164 का वर्ड जो है ये नहीं बोलता है कि अक्यूज का करेंगे या विक्टिम का करेंगे या किसका करेंगे. इट ओनली सेज दैट इफ आई रीड इट,
रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। ओके, अब कन्फेशन भी एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। कन्फेशन मतलब क्या होता है? कन्फेशन जो देखो डायरेक्टली वैसे तो यहाँ डिफाइन नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट कन्फेशन, एडमिशंस एंड कन्फेशंस। कन्फेशन बेसिकली कौन दे सकता है? कन्फेशन एक अक्यूज ही दे सकता है। सो समबडी हु कम्स टू द अथॉरिटी एंड से दैट आई हैव डन दिस क्राइम, सो इट्स मोर ऑफ अ कन्फेशन। कन्फेशन इज मोर ऑफ एन एक्सेप्टेंस, मतलब एक तरीके से मान लेना कि मैंने किया है, अगर लेमैन लैंग्वेज में। तो अगर कोई इंसान जिसकी गिरफ्तारी हो जाती है और जिसका मुकदमा नहीं चलता है, विवेचना जिसको हिंदी वर्ड बोलते हैं विवेचना, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई बोलता है कि मैं आई वांट टू कन्फेस दैट आई हैव कमिटेड दैट क्राइम, कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर विल नॉट हैव एनी एविडेंसरी वैल्यू। तो प्रोसिक्यूशन क्या करती है? उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने ले आती है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है, ज्यूरिसडिक्शन इशू नहीं है। देखो केस जो चलता है वो ज्यूरिसडिक्शन पे होता है। मतलब मान लो कि अगर केस नोएडा में हुआ तो नोएडा डिस्ट्रिक्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में ही वो केस चलेगा, नोएडा न्यायालय में जाओगे, विल फाइल द केस। बट कन्फेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। व्हेन आई से मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशियल एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, एसडीएम के सामने कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड होता है। सो statement can be recorded before any judicial magistrate, any metropolitan magistrate. So इनके सामने रिकॉर्ड हो सकता है। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, कन्फेशन जो कर रहा है, उसके स्टेटमेंट पे भी रिकॉर्ड करने से पहले ये फर्ज बन जाता है, ऑफ द मजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म हिम दैट यू आर कन्फेसिंग समथिंग। आप फोर्स और चीजों में तो नहीं है। अगर आप कन्फेशन फोर्स और सब चीजों पे कर रहे हैं तो ये आपके अगेंस्ट में जा सकता है। So you have one, a chance is given कि अगर वो retract करना चाहता है तो he can retract also. And there is also a provision which is also very important, 164 clause 3. I read it. If any time before the confession is recorded, if person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. और इंटरेस्टिंग चीज है, इसको यूज कर सकते हो। कोई बंदा अगर पुलिस कस्टडी में है तो एज अ इंडिविजुअल हम बोल सकते हैं कि भाई आप पुलिस कस्टडी में हैं, और पुलिस कस्टडी में इसको यूज नहीं, मिसयूज भी हो सकता है कि हम कहते हैं कि वी वांट टू मेक अ कन्फेशन, मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, वहां पे बोल देते हैं वी डोंट वांट टू मेक अ कन्फेशन। नाउ एज पर द क्लॉज 164 सब क्लॉज 3 सेक्शन 164 क्लॉज 3, मजिस्ट्रेट कैन नॉट सेंड यू बैक टू द पुलिस कस्टडी। ऐसा नहीं हो सकता। उसका पर्पस ये था कि अगर कन्फेशन करने जाओ और कन्फेशन मना कर दो तो अगर पुलिस कस्टडी में दोबारा भेजा जाएगा तो पुलिस वाले हो सकता है मारपीट करें। तो जैसे वो बोलता है कि मैं कन्फेशन नहीं करूंगा तो उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में। दिस पार्ट आई एम डीलिंग विद द कन्फेशन एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बार होता है क्राइम में, अगर आप देखते हो ना, लोग कहते हैं कन्फेस कर लिया, चीजें कर लिया। तो कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू है, बट इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। पहली बात ये है कि मान के चलो ऐसा नहीं होता कि somebody confess और केस खत्म हो जाता है। ट्रायल तभी भी चल सकता है, मेनी टाइम इट में हैपन। अगर जज को लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत बार लोग कन्फेस इसलिए कर रहे हैं किसी बचाने के लिए, तो कन्फेशन डजंट मीन दैट ट्रायल विल नॉट टेक प्लेस। सो वो एक तो एक दिमाग में हटा देना। दूसरा चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कन्फेशन होता है वो ओथ पे नहीं होता है। कभी भी देखोगे ना, उसका रीजन है, अगर तुम क्रिमिनल प्रैक्टिस में आओगे तो पता चलेगा ओथ पे क्यों नहीं दिया जाता है। ओथ पे लेने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट में यूज हो सकता है, मतलब एक आपको बाइंड कर दिया जाता है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये प्रिंसिपल हमेशा रहेगा टिल द कोर्ट comes to a conclusion that there is no other situation than pointing all those things towards a particular individual that he has committed the particular crime. He is more of a accused rather than a convicted person. So ये ओथ पे इसलिए नहीं लिया जाता है, इसका रीजन ये है, अगर 313 के स्टेटमेंट जैसा ही है कि आदमी को ये कभी नहीं सजा मिल सकती है कि तुमने गलत झूठ बोला है। एक तरीके से उसको फ्रीडम दे दी जाती है कि जो सच में हुआ है वो कंसाइंस के हिसाब से अपना एक्सेप्टेंस करें। तो दैट इज व्हाई इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर
that all the statements before the court and magistrates are under oath, but a statement under 164 which is related to confession will not take place under oath. मतलब उसको oath नहीं दिलाई जाएगी कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है? ये oath नहीं होती 164 में फॉर कन्फेशन। अब अनदर पार्ट में हम आते हैं दैट डील्स विद द स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वालों को ये लगता है कि भाई ये केस को स्ट्रॉन्ग करना है, और पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट होता है उसकी कोई कन्फेशनल वैल्यू, सॉरी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती है, तो दोज विजुअल्स कैन बी ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट अंडर स्टेटमेंट इन द केस रिलेटेड टू द वीमेन। अगर किसी और लेडी के खिलाफ कोई क्राइम कमिट होता है, मे बी इन 376, 354, 509 एंड ऑल, यहाँ पे एक एडिशन हुआ है में, सो इफ यू गो थ्रू सेक्शन 5 सब सॉरी सब 5 you'll see on these things and a statement can be recorded. So यहाँ वो accused नहीं हो सकती हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए जाते हैं, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट दीज स्टेटमेंट्स आर अंडर ओथ। एंड मान लो कि अगर ऐसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, सो द स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ एजुकेटर, और वहाँ पे मतलब बेसिकली उनके मजिस्ट्रेट के सामने जब रिकॉर्ड हो सकता है तो लॉयर भी वहाँ पे हो सकता है। सो एंड देयर एंड ऑल्सो this statement recorded, it's very important that this statement which is recorded in the presence of magistrate is treated equally to the examination in chief. क्या होता है कोर्ट में, जिसको प्रोसेस पता होगा कि जब पहली बार कोई विटनेस कोर्ट में आता है तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है, जिस पार्टी ने उससे बोलती है के लिए, तो इस तरीके से ट्रायल प्रोसेस बन जाता है। 164 क्लॉज का ट्रायल प्रोसेस। यहाँ पे क्या है कि अगर आप नहीं सकते हैं, आपके दिमागी रूप से सही नहीं है, चीजें नहीं है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं मजिस्ट्रेट, आपके साइन लैंग्वेज और इन सब चीजों का यूज जो कर रहे हैं उनकी भी हेल्प, तो एकदम एग्जामिनेशन इन चीफ की तरीके से होता है। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ के तरीके से हो गया, तो फिर अब क्या होगा कि इसका तुम्हारा इस स्टेटमेंट के बेसिस पे तुम्हारा क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? अपोजिट पार्टी करती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि 164 जो है, स्पेशली यू हैव सीन लॉट ऑफ केसेस अगेंस्ट basically crime is being committed against women. So 164 has a lot of relevance because it gives a power to police officer to bring the person who is willing to make confession and also record the statements of the victims and also other people before the magistrate. अच्छा, दूसरी चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ट्रायल अगर शुरू हो गया आपका या इंक्वायरी शुरू होगी, तब 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होंगे। उसका पर्पस ये है कि ये कोर्ट में जब मामला चलना शुरू हो गया तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी कोर्ट में होगी। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन्वेस्टिगेशन में किसी मजिस्ट्रेट का कोई रोल होता है कि नहीं होता है, then you can answer him that there are sections like 164 where magistrate has very important role to play. इसके अलावा अदर सेक्शन है रिमांड एंड ऑल। सो 161, 162, 163 भी अगर थोड़ा देख सकते हैं, 164। सो मैं थोड़ा सा ना आपको रीडिंग दूंगा। टुमारो विल ट्राई टू कवर ऑल दोज स्टेटमेंट्स फ्रॉम 162। आज ये पर्पस ये था कि वी जस्ट वांटेड टू स्टार्ट इट बिकॉज हमारा बीच में काफी ब्रेक हो गया। लास्ट टाइम वी हैड Amisha's presentation and then we have to work on the reschedule those presentations as well. I request all of you at least do the reading from 160 to 164A because ये statements बड़े important है और आपको काफी help करेंगे। क्योंकि अगर फाइल निकालोगे ना तो देखोगे 161 का बयान, कहीं भी पुलिस की केस डायरी निकालोगे तो 161 का बयान पूछते। 161 बयान क्या है, 162 क्या होता है, 162 क्या होता है और 164 क्या होता है। ये स्टेटमेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस रिकॉर्ड होते हैं और इनकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है ये देखने की बात है। एनी स्टेटमेंट विच इज रिकॉर्डेड अंडर 164
will have lot of evidentiary value as compared to the 161. Okay, so this is a very short discussion that we had. If you have any questions and query, आप अभी पूछ सकते हो, वरना tomorrow we'll have a 1 hour session on the statements. I'll be taking a class of an hour on statements. So I'll be dealing with the different statements which are under the CRPC. So kindly read 160, 161, 162, 163 and 164 and 164A. थोड़ा सा पढ़ के आइए, और अगर टाइम बचता है तो फिर आप 137 भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट का एग्जामिनेशन 137, 38, 39 एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन क्वेरी आप पूछिए. वांट टू आस्क एनीथिंग? एज यूजुअल तुम लोग सुनते हो और पता नहीं क्या सुनते हो या... हाँ भाई मिसबा जी आप ही पूछिए. Sir, we have one question, sir. Sir, as I was going through the section 161, there is a subclause 2. There is a clause 2 that in the same, such person shall be bound to answer truly all the question relating to, if any question is put by the investigating authority to the witness or any person, he must answer the same. But the second clause says that such person shall be bound to answer truly all the questions relating to such case put to him by such officer, other than question the answer to which would have tendency to expose him to a criminal charges or penalty or forfeiture. So in that case, if we relate it to that section where section 319 application is attached, when a person is suppose a person has given a statement in a very truly statement has been given, and in that statement if he is somehow incriminating himself, if he is showing his involvement, or whether or sometimes he need to explain why he was there at the scene of a crime. If the question of such nature is asked, then he need to give the reason for that, and by giving that reason he may be compelled to come before as an accused under section 319. ठीक है, तो 319 में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 319 में जो अक्यूज को कॉल किया जाएगा वो कोर्ट के बिफोर में जो एविडेंस आएगा उस पे आएगा. ठीक है, तो 161 के बजाय उसका एविडेंसरी वैल्यू कोई नहीं रहेगी, क्योंकि मिसबा अगर देखो कोर्ट में 319 की एप्लीकेशन किस पे लगती है? 319 की एप्लीकेशन 161 के स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं लगती है. 319 की स्टेटमेंट लगती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स PW1, बहुत केस में PW2 भी जाता है. तो अगर मान लो कि मैं PW1 ही हूँ, ठीक है, और PW तुम्हारे हिसाब से PW1, अगर एक सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि मैंने 161 का बयान दिया, ठीक है, उसमें भी कुछ मैंने गड़बड़ किया, अगर मैं PW1 बन के भी एक तरीके से वो बयान दे देता हूँ, ठीक है, ओके, अगर मैं PW1 बन के बयान दे देता हूँ और उसमें खुद ही अपने आप को बोलने लगता हूँ, ठीक है, और फिर 319 की एप्लीकेशन तो आपकी एग्जामिनेशन इन चीफ पे जो होती है उसके बेसिस पे बनती है, ना कि 161 के स्टेटमेंट पे. 161 के स्टेटमेंट को जब तक कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूव नहीं किया जाएगा, ओके, तो उसकी क्या एविडेंस जो है? 161 स्टेटमेंट इज ओनली यूज फॉर कॉन्ट्रडिक्शंस. ओके, 161 स्टेटमेंट को यूज कर सकता अगर वो कोई बोलता कि मैंने ही किया है या ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, तो 161 what I'm saying sir, he is not saying कि मैंने ही किया है, बट लेकिन अगर उस तरह का क्वेश्चन आ जाए एंड ही नीड टू आंसर इट, वो कैसे मना करेगा? until unless he speaks it, वो रीजन कैसे देगा कि ये आंसर हम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें हम खुद भी इन्वॉल्व हैं? तो हाउ इट कुड बी रिकॉर्डेड? ये कैसे, वो क्वेश्चन में ऐसा कोई सिचुएशन आ ही नहीं सकती ना. मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला कि तुम वहां क्या कर रहे थे, ठीक है, हाँ, तुम क्या कर रहे थे, तो वो ये थोड़े बोलेगा कि मैंने भी वहाँ क्राइम में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उस बेसिस में तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी. मेरी बात समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि अगर वो मान लो, तब तो एक तरीके से अगर मैं किसी का 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, उस 161 स्टेटमेंट पे आईओ को तुमने एक ऐसे आंसर दे दिए, ठीक है, कि जिससे ये लगने लगा कि तुम भी उस क्राइम में इन्वॉल्व हो, तो अब ये तो
पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन एक तरीके से चली गई, इंफॉर्मेशन नॉलेज सब कुछ हो गई। सो नाउ इट्स पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू अरेस्ट यू। ठीक है, 319 का तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये है कि तुम ये कह रहे हो कि भाई सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते, तो आप बोल सकते हो कि भाई उस आंसर ना देने से दो ही चीज हो सकती है, रिकॉर्डेड कुछ नहीं होगा, पुलिस आपको भी गिरफ्तार कर लेगी। मेरी बात समझो मैं क्या बताने कुछ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक दुबे के केस में ही उनकी मदर इन लॉ से क्वेश्चन हुआ, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मैं यहाँ थी, वह वहां थी। अब पुलिस को अगर देखा जाए तो उनको लग सकता तो उसको भी गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो ये सब कुछ बहुत कुछ आईओ पे होता है, लेकिन ऐसा कोई सेंस नहीं आएगा 161 के स्टेटमेंट में जहां पे इंसान ये बोले कि उसके स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग which points towards any guilt of this person towards the commissioning of that crime. In that case, in all probability, investigating officer will make him as one of the accused. 319 का तो क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। 319 का क्वेश्चन हमेशा 161 के स्टेटमेंट पे नहीं बनता है। 319 का जो क्वेश्चन होता है हमेशा एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कुछ कोर्ट के सामने आ गया उस पर बनेगा। तो 161 में अगर कोई ऐसा इंसान अगर वो आंसर देता है और आंसर से वो लगता है कि ही इज इन्वॉल्व इन द क्राइम, देन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू एक्ट अगेंस्ट द पर्सन ना। वरना तो फिर आपके पास में मजिस्ट्रेट के पास में भी आप जा सकते हो, एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, और आप फोर्स नहीं कर सकते हो आंसर देने के लिए। या तो वो उसको गिरफ्तार करेगा या ऐसी वो चीज डायरी में नहीं लिखेगा। मैं यही बताना चाहता हूँ। अगर प्रैक्टिकल बात सोचो, क्योंकि ऐसा कोई केस नजर नहीं आएगा तुमको कि 161 के स्टेटमेंट किसी आदमी की गिल्ट लग रही थी और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा केस देखोगे नहीं, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी कभी आएगी नहीं, क्योंकि वरना आयोग खुद ही गिरफ्तार करेगा ना। यस सर, थैंक यू। नहीं क्योंकि ऐसे सिचुएशन जब तक लाओगे नहीं तब तक नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन है 319 से तो कनेक्टेड है ही नहीं ना। 319 तो दूसरी चीज हो गई। 319 तब आ सकती है कि जब मान लो कि किसी ने स्टेटमेंट दे दिया PW1, PW2, PW3, ठीक है, ठीक है, PW1, PW2, PW3, PW2 का स्टेटमेंट आ गया कोर्ट के सामने, ऐसा लग रहा था इसमें उसने बोला कि वहां पे मर्डर हो रहा था, मैं वहां पे था, ये चीजें। तो तब तो डिफेंस साइड भी एप्लीकेशन मूव कर सकती है कॉल करने के लिए। ऐसा थोड़ी ही है कि प्रोसिक्यूशन साइड ही मतलब कॉल करेगी, अब तो डिफेंस साइड भी। तो 161 का स्टेटमेंट का 319 से कोई डायरेक्ट रिलेवेंसी तो नहीं है। 319 यूज किया के डेलिब्रेशन में वी कैन यूज 161 स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्राडिक्शंस, ये सही है। एंड देन अनदर पार्ट इज इफ in your case hypothetical condition कि जहाँ पे खुद ही एक ऐसा स्टेटमेंट देता है, in that case if he gives such a statement, I think IO will be duty bound to arrest him, या वो स्टेटमेंट ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो गिल्ट पॉइंट करे और वो रिकॉर्ड कर ले वही चीज को और उस पर वो एक्ट ना करे, चार्जशीट में उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं और किसी को कुछ? तो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। सो टुमारो Balraj will share with you the PPT same time, and please read from 160 to 164A. ठीक है, थैंक यू। आई हैव वन मोर क्वेश्चन सर इसमें। हाँ बताओ भाई। हाँ सर, इस वाले केसेस में जो हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो हम ऑलरेडी लिख कर ले जाकर जो देंगे वो ले लेंगे, या फिर जो हम उनको बोलेंगे वो राइट डाउन करेंगे सर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एफआईआर करवानी हो एज अ कंप्लेनेंट तो वी हैव अ टू ऑप्शन। अगर कोई इलिटरेट है तो ही कैन ओरली नरेट द एंटायर स्टोरी, द रीडर और द टाइपिस्ट विल टाइप इट डाउन और उसको पढ़ के सुनाएगा, रीड इट अलाउड, और उसका सिग्नेचर लेके एज अ कंप्लेंट लेके एफआईआर हो जाएगी इसके ऊपर। नहीं, यहाँ पे तो मजिस्ट्रेट के सामने में तो आपको बोलना होगा, बट इसमें अमेंडमेंट बाद में एक स्पेशल प्रोविजन भी आ गया है जहाँ पे कुछ केसेस में, जैसे देखोगे शायद 164 क्लॉज 5 में, जहाँ ऑडियो वीडियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग की भी बात हो रही है। तो एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे ओरल टेस्टिमनी पे फोकस है, ना कि रिटन पे। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने ओरली की बात हो रही, लेकिन फिर आई थिंक 2005 और 2006 अमेंडमेंट इन स्पेशल केसेस वेयर अ पर्सन cannot be of a sound mind, या
उसको कुछ डिफॉर्मिटी है, सो इन दैट केस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इज आल्सो परमिसिबल। तो वो बात सही है कि एफआईआर में तो क्या होता है कि पढ़ के सुना दिया, बट यहाँ पे तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। सी स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग क्या होगी? स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग एक तरीके से देखो, मैंने यही बोला है कि इट्स मोर लाइक अ मिनी, आई विल नॉट यूज मिनी ट्रायल, बिकॉज ट्रायल इसलिए नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ट्रायल में तो दोनों साइड को क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन, बट एनीथिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। एक थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगाया करो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को छोड़ दो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने या किसी के सामने कोई भी चीज अगर आती है तो क्या होता है, आप एप्लीकेशन भी मूव करते हैं तो आप बोलते जरूर हैं, ये बात समझ रहे हो? Yes. स्टेटमेंट जितने भी रिकॉर्ड होते हैं तो वहां सामने बोल के रिकॉर्ड होते हैं। अभी देखा है, इट्स मोर लाइक एग्जामिनेशन इन चीफ। मैंने पहले ही बोला कि इट्स मोर लाइक एग्जामिनेशन इन चीफ। इसमें सर प्री रिकॉर्ड रिटन स्टेटमेंट ले जाकर हम अपने एक तरफ से सबमिशन बना के ले जाकर नहीं दे सकते। ऐसा तो मैंने केस नहीं देखा कि जहाँ पे सबमिशन दिया है, और तो इसमें भी बहुत क्लियर नहीं है। बट ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर, जब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट मतलब ये हुआ कि आप बोलेंगे, अगर आप बना के भी ले जाओगे तो बोल के सुनाओगे, बोलना तो पड़ेगा, रिकॉर्डिंग तो होगी ही होगी। मतलब स्पेशल केस में रिकॉर्डिंग होगी और वैसे आप बोलेंगे और उसका पे लिखा जाएगा और वो पढ़ के, क्योंकि देखो उसका रीजन क्या है कि अगर इसमें पढ़ोगे 164 ध्यान से तो लास्ट में एक मेंशन करना होता है मजिस्ट्रेट को कन्फेशन में। कन्फेशन जब होती है ना तो Yes. ये मेरे ख्याल से एक लाइन है, वो स्टैंडर्ड लाइन है, मैं बताता हूँ तुमको। 164 की स्टैंडर्ड लाइन ये है कि Voluntariness. आई हैव एक्सप्लेन टू द ही इज नॉट बाउंड टू मेक स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है। अब वो किस पे लिखेगा? उसके कागज की नकल थोड़ी करेगा या उसके कागज पे थोड़ी लिखेगा, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? तो हमेशा जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वैसी होंगी, अलग थोड़ी होंगी। 281 में जैसे है इन्होंने लिखा रखा है वैसे कोर्ट वाइज प्रोसीडिंग होगी, ठीक है? Sir. Yes, sir. ओके, ओके बाय। Thank you, sir.